ان کے لیے ایک تو بڑے 60 کا شروع ہو چکا پیریڈ اس سال مارچ سے، جب سیٹرن ان کے سمجھے 12th ہاؤس میں آیا. یہ کیونکہ بہت زیادہ امپیشنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انرجی سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت مشکل ہوگا ان ٹرم آف ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ چیزیں ڈیلے ہوں گی، مزاج کے خلاف ہوں گی. اس مہینے میں جون 2026 میں ہائی چانسز ہوں گے گاڑی کی خرید کریں، کوئی پراپرٹی لیں، کوئی لینڈ لیں، اسی طریقے سے ماں کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی، وہ ریکور کر جائیں گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین، بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پر آج ہم بات کریں گے 2026 کے حوالے سے، اور زوڈک سائن ہے ایریز سے لے کے پائسس تک ایک ایک زوڈک سائن کا ہم اسامہ صاحب سے پوری فورکاسٹ پوچھیں گے کہ پورا 2026 کیسا رہے گا. سب سے پہلے ایریز کی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ایریز کا سمجھ لیں کہ اے سے لے کے زیڈ تک سارے معاملات پر بات کریں گے. 2026 ان کا کیسے گزرے گا. آپ لوگوں نے جنگوں کی پریڈکشن دیکھی، آپ لوگوں نے اسامہ صاحب کی فورکاسٹ دیکھی، مختلف چینلز پر دیکھی، کتنی زبردست ہوتی ہیں، اور آپ لوگ خود کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو اب ہم ایریز کی بات کریں گے. اچھا برا منتھ مہینہ کیا ہونے جا رہا ہے ایریز کے ساتھ، آئیے جانتے ہیں 2026 میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ یہ جو ہماری کم از کم 12 پروگرام ہے، اس میں خبریں بھی نہیں لی جا سکتی کیونکہ یہ ایک لینتھی ٹاپک ہے. اس میں آپ کے کمنٹس بھی نہیں لیے جا سکتے، لیکن کمنٹ آپ لوگوں نے دعاؤں کے، خیر سگالی کے، مبارکباد کے کرتے رہنا ہے. اور کیونکہ یہ پیورلی ایک ضرورت ہے، آپ سب کیونکہ متجسس ہوتے ہیں کہ ایئرلی فور کاسٹ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے دیکھنے کی کہ سال 2026 کا کیسا رہنے والا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نے بھی اس پہ کام کیا کافی زیادہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ کچھ دن جو جنوری تک کے، یکم تک کے آؤٹ آف دا وے محسوس ہوگا پروگرام، لیکن اس کے بعد ہم جنوری سے پھر اپنے بیک ٹو ٹریک چلے جائیں گے. فی الحال صرف ابھی ہمیں زوڈک کی فور کاسٹ کو کرنا ہے، پھر ایسی جنوری کی کرنی ہے. جو بیسک بنیادی سب آپ سب کی ایکچوئل جو ایسٹرالوجی سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد سب سے پہلے جو ایریز کی اگر بات کریں تو ایریز کو مارس رول کرتا ہے. دنیا میں بے خوف نڈر لوگ یہی ہوتے ہیں، ہر نئی چیز کو شروع کرنے والے، بے خطر کود جانے والے. آتش نمرود میں ایریز سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک تو بڑے 60 کا شروع ہو چکا پیریڈ اس سال مارچ سے، جب سیٹرن ان کے سمجھے 12th ہاؤس میں آیا. ابھی 2.5 سال ان کو محسوس ہوگا کہ ان کے جو نیند کی کمی کا باعث بن سکتا ہے یہ سیٹرن کی پلیسمنٹ. اسی طریقے سے جو امپیکٹ ہے ان کے اوپر، ایک ایسا ان کو دباؤ محسوس ہونے لگے گا، چیزیں سلو ہونے لگیں گی، لیکن یہ ان کو بناتی ہے. کبھی بھی سیٹرن کی یہ جو پلیسمنٹ جس کو 60 کہتے ہیں، یہ آپ کے 12ویں گھر سے آتی ہے. 2.5 سال اس کے فرسٹ ہاؤس میں، پھر سیکنڈ ہاؤس میں. لیکن اگر کسی کی زندگی میں یہ نہ آئے تو وہ کبھی بھی رسپانسبلٹی کا احساس ہی نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ بہت زیادہ امپیشنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انرجی سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت مشکل ہوگا ان ٹرم آف ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ چیزیں ڈیلے ہوں گی، مزاج کے خلاف ہوں گی. تو اس میں صرف ایک ہی فارمولا ہے جو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں، ہر چیز کو 4 ٹائم وہ ڈیلے میں لے جاؤ. جیسے فاسٹ فارورڈ کا بٹن ہوتا ہے نا، ایک سلو کا بھی بٹن ہوتا ہے نا، جیسے سلو کر لو. مطلب ایک کام آپ کا 1 ہفتے میں ہونا تھا، سوچو اس کو 4 ہفتے لگیں گے. جو 1 مہینے میں ہونا تھا 4 مہینے میں ہوگا. اس انداز سے چیز، اور چھوڑنی نہیں کوئی بھی کام جو بھی شروع کر لیا، کیونکہ آپ سمجھیں گے ماضی کی اپنی ایکسپیکٹیشن کے
हिसाब से। अब वो उस तरीके से होगा नहीं तो आप दरमियान में छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये दौर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला के, रिस्पॉन्सिबल बना के, घर गढ़ा के, फिर आपको गेन्स और जितनी भी इन अगले 5 सालों में मेहनत होगी वो एसेट्स में कन्वर्ट करके देके जाएगा जब सेकंड हाउस में आखिरी फेज में 60 के सैटर्न जाएगा। क्योंकि आपके काम और आपके गेन हाउस का मालिक जब आपके दूसरे घर में जाएगा ठीक एग्जैक्टली 4 साढ़े 4 साल बाद, तो उस वक्त वो आपको एसेट्स देगा, उस वक्त वो आपको सारी की हुई मेहनत का फल देगा। तो स्टार्ट करते हैं। जुपिटर जैसे जमनाई टू कैंसर इस साल मूव करेगा, आज साल के आखिर में लीव में जाएगा। उसके बाद सैटर्न ने तो यहीं रहना है, आज सिर्फ रेट्रो होगा लेट जुलाई टू दिसंबर के दरमियान में कहीं जाके। राहु केतु अपनी प्लेसमेंट जो है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास चेंज कर जाएंगे। जिंदगी का सब जो मेजर चेंज है वो अक्टूबर नवंबर में महसूस करेंगे, ऑल टू ऑल। इसी तरीके से जो जनवरी से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2026 एरीज के लिए इसमें जो इनका जो फोकस रहेगा वो करियर पे रहेगा, प्लानिंग पे रहेगा, नेटवर्किंग पे रहेगा। ताल्लुकात बनाने की तरफ ध्यान रहेगा, प्लानिंग करेंगे करियर की। पॉजिटिव बात यह है कि प्लानिंग फॉर वर्क करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने उनकी प्लानिंग करेंगे। इनकम में थोड़ी सी इंक्रीज महसूस करेंगे और इसी तरीके से मजहबी और चैरिटी के काम, रिलीजियस और चैरिटी वर्क्स में इन्वॉल्व होंगे। चैलेंजेस जो रहेंगे जनवरी 2026 में इनको, वर्क प्रेशर, नींद का मसला, माइनर ट्रैवल डिलेज भी महसूस होंगे और इसी तरह प्यार मोहब्बत में भी थोड़ी बहुत खुशकी का माहौल रहेगा। उसके बाद जी फरवरी 2026, इसमें मार्स जो है वो इनके 10वें घर में आ जाएगा, डोमिनेट करेंगे कामों को। मिड फरवरी तक तकरीबन ये होगा एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। और इसी तरीके से मरकरी इक्वेरियस में, वीनस इक्वेरियस, सन इक्वेरियस, जुपिटर जमनाई रेट्रो होगा। फोकस अब रहेगा करियर पे, ब्रेक थ्रू, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन। काम की जगह पे तरक्की मिल जाएगी, काम को मनवा लेंगे, पोजीशन राइज कर सकती है। प्रमोशन है इसमें, इसमें बिजनेस एक्सपेंशन है, इसमें रिकॉग्निशन है, नेटवर्किंग गेन्स है। लेकिन इसमें साथ ही काम की जगह पे फड्डे भी होंगे, डोमिनेट करेंगे, बलडोज करते नजर आएंगे। चैलेंजेस होंगे अगेन, वर्क स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट से भी आप लोगों को अपना हिफाजत रखनी है कि आयतुल कुर्सी, बाहर निकलने की दुआ। और इसी तरीके से जो आप लोगों का सुर्ख चीज का सदका मंगल वाले दिन का बनता है, लाल दाल सर से वार दी, थोड़ा सा लाल गोश्त वार दिया, वो फेंक दिया, रेड चीज का सदका मंगल वाले दिन। अच्छा जी, इसी तरीके से बड़ा करियर वाइज और पोजीशन वाइज सबसे अच्छा महीना होगा फरवरी 2026। उसके बाद इनके लिए मार्च 2026, इसमें जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा जमनाई में, रेट्रोग्रेशन अपनी खत्म करेगा। इसी तरीके से मार्स जो है एक्वेरियस की तरफ जा रहा होगा, इनके उम्मीदों के गेन के घर में लगन लौट जा रहा होगा। इस टाइम ये किसी बड़े ग्रुप को लीड कर सकते हैं, कोई बड़ी ग्रुप की इनको लीडरशिप, जो इनको तरक्की मिली थी, अब ये अगले महीने समझ लें कि उसमें लीडरशिप रोल मिलेगा बहुत बड़े लोगों पे, ग्रुप्स में, इस तरीके की सूरत हाल होगी। और इसमें ये देखें कि इनको जो मरकरी इसमें भी रेट्रो होगा, फैसले थोड़े से वो जैसे कहते हैं कि सोच समझ के लेने होंगे। और इसके साथ साथ ये जो पोजीशन होगी, सन पाइसिस में चला जाएगा और वीनस पाइसिस में एग्जॉल्टेड हो जाएगा। गेन्स फ्रॉम सोशल नेटवर्क, दोस्तों से, ग्रुप्स में उनसे गेन्स आएंगे, प्रॉपर्टी की प्लानिंग करेंगे, ट्रैवल की कोई तैयारी करेंगे। पॉजिटिव फाइनेंशियल का महीना होगा, सोशल कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ मुयसर रहेगी। तो मार्च इज अ गुड मंथ इन टर्म्स ऑफ गेन्स। इनके लिए, एरीज के लिए मार्च एक अच्छा महीना होगा।
फरवरी में सिर्फ काम पे तरक्की मिल रही थी, इसमें फाइनेंशियल जैसे कहते हैं बेहतर होती, उम्मीदें पूरी होंगी। उसके बाद अप्रैल 2026, इसमें सन एग्जॉल्टेड होगा, एरीज में आया होगा, चमकेंगे, डोमिनेट करेंगे, नुमाया होंगे। मार्स पाइसिस में, अब यहाँ जो मार्स जब पाइसिस में आएगा, सैटर्न मार्स इकट्ठा होगा, रूलिंग प्लैनेट इनके बाद में उसमें, तो थोड़ा सा लेफ्ट आई पे चोट, पाँव पे चोट, इसका ख्याल रखेंगे इस टाइम पे। इसी तरीके से मरकरी पाइसिस, एरीज, वीनस, और इसी तरीके से जो जुपिटर है वो तो जमनाई में ही अभी स्टे करेगा, क्योंकि जून में वो जाएगा अराउंड कैंसर एक्सॉल्टेड पोजीशन पे। तो पर्सनल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, लीडरशिप के मौके बढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से अप्रैल भी कोई नए इनिशिएटिव्स का महीना होगा, इमेज बहुत अच्छा होगा, अथॉरिटी, पहचान, प्रोजेक्ट्स, ये यानी कि इनके लिए बहुत आइडियल टाइम होगा। इनकी जो मेहनत शुरू हुई पड़ी है उसका फल इनको इस महीने में भी मिलता नजर आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि सन जब फर्स्ट हाउस में आता है तो एक दफा तो बंदा सुनता ही नहीं ना किसी की चमकता है, मजा, कहता है बस मैं ही मैं हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये महीने में इनको थोड़ा सा अपने आप को, अपने इगोइस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा, अब प्राउड आ जाएगा। देखो पहले रिकॉग्निशन मिली, फिर गेन्स में कन्वर्ट हुई, फिर कुछ जैसे कहते हैं नया शुरू हुआ, और अब ये अपने आप पे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। एक तो वैसे ही जबरदस्त। एरीज, ऊपर से सन फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो ये वो टाइम होगा जिसमें इनके लिए ओवर कॉन्फिडेंस इनको नुकसान देगा। इसी तरीके से छुपे हुए दुश्मन भी कोई वार करेंगे। इसके बाद जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, और इसी तरीके से बाहर के मुल्क में अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। हो सकता है कि इन दिनों ये कोई अप्रैल 2026 में बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं। क्यों? ठीक है। क्योंकि इनका जो मार्स है वो जब पाइसिस में होगा, पाँव पे चोट तो है सो है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल भी है, लगन लॉर्ड 12वें में है, तो बाहर से कोई कनेक्शन से कोई इन्वेस्ट करेंगे या सफर करेंगे, या एक्सपेंस आएगा ऑनलाइन या बाहर की जमीन पे, कुछ भी। उसके बाद जी मई 2026, मई 2026 में मार्स स्पाइसिस में ही है, मरकरी एरीज में है, टॉरस को जैसे एरीज टू टॉरस जाएगा। इसी तरीके से वीनस अपने साइन में आएगा, सन भी टॉरस में आएगा, जमनाई, स्टिल जुपिटर जो है वो जमनाई में ही होगा। अब यहाँ फिर फिनेंसेस और फैमिली और लग्जरी और कंफर्ट्स पे फोकस तो रहेगा, लेकिन सन अब इनके सेकंड हाउस में चला गया, और अब इनका जो फोकस है वो फैमिली, खाना पीना और इस सब पे रहेगा। और कैश फ्लो बढ़ेगा, फैमिली हार्मनी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स इनको इस टाइम पे मिलेंगे। चैलेंजेस रहेंगे मई के महीने में, एक्सपेंस हाई रहेगा, फटीग रहेगी, पाँव और डाइजेस्टिव इश्यूज, जैसे मैंने कहा पाँव पे चोट और डाइजेस्टिव इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। जून 2026, इसमें ट्रांजिट कर जाएगा कैंसर इनके चौथे घर में, दिल में। दिल बड़ा हुआ होगा, घर गाड़ी एक्सपेंड कर रहे होंगे। ये वो महीना है जहाँ ये इनका फोकस या मजा, घर का सुख, गाड़ी का सुख, घर का सुख, ये इस जून के महीने में लेते नजर आते हैं। तो अगर ये पिछली सारा आप सीक्वल से देखें तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये महीना है इनका सबसे, जब सारा कुछ गुजर गया तो अब ये थोड़ा सा सुख लेने की तरफ होंगे। इस महीने में जून 2026 में हाई चांसेस होंगे गाड़ी की खरीद करें, कोई प्रॉपर्टी लें, कोई लैंड लें, कोई इसी तरीके से माँ की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, वो रिकवर कर जाएंगी। इसी तरीके से समझ लें कि जो ओवरऑल जून सुख देने का महीना, सुख का महीना तो जून ही है। जैसे काम की रिकॉग्निशन का महीना है, काम में तरक्की का फरवरी, मार्च है गेन्स और उम्मीदों का, कि उसमें उम्मीदें और गेन्स पूरे होंगे। इसके बाद अप्रैल उस तरीके से फिर थोड़ा सा इगोइस्टिक एटीट्यूड और वो उसका बन रहा है। फिर मई थोड़ा सा बेटर होने जा रहा है, चीज़ें मेटेरियलाइज हो रही हैं, फैमिली मैटर्स,
एसेट्स बिल्डिंग उसकी तरफ, और जून में अब सुकून सुख घर गाड़ी की तरफ आ गए। जुलाई 2026 यहाँ अब जाके अपने ही साइन में मार्स एंटर हो रहा होगा, और मरकरी जो है वो जेमिनाई टू कैंसर जा रहा होगा, वीनस भी कैंसर में होगा, जुपिटर कैंसर में होगा, सैटर्न तो यहाँ कहीं रेट्रो होने के चांसेस हैं पाइसिस में। तो अब ये जुलाई भी इस हिसाब से देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। अगर जून में इन्होंने ना कुछ खरीदा हुआ तो जुलाई में तो वीनस आया ही आया, कंफर्ट लग्जरी पे, सुख पे, कंफर्ट पे, लग्जरी गाड़ी, घर, घर का नया फर्नीचर, ये वो, इस पे पैसे लगने वाले हैं। पर्सनल पावर, करेज, लीडरशिप, कम्पिटिटिव सक्सेस का महीना होगा। इसी तरीके से बड़ा पॉजिटिव महीना है ये भी इनके लिए, लेकिन यहाँ भी चैलेंजेस जो होंगे वो गुस्सा का आना और छोटे माइनर एक्सीडेंट, इसके चांसेस मौजूद रहेंगे, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती नज़र आ रही है। और इसके बाद कह लें कि हर लिहाज से जुलाई एक बहुत जबरदस्त महीना होने जा रहा है एरीज के लिए 2026। उसके बाद जी अगस्त 2026, अब मार्स टॉरस में जा रहा होगा, सेकंड हाउस से गुजर रहा होगा। अब पहले तो अपने ही उसमें आया था तो डोमिनेट कर रहे थे, दिमाग हाई, जैसे मैंने कहा कि एंगर मैनेजमेंट का इशू, उनको एंगर मैनेज करना होगा, डोमिनेटिंग नेचर हुई होगी। अब पीछे सुख आ रहे हैं, आगे पैसे चीजें, अब तो बंदा जमीन पे ही नहीं है भाई। उसके बाद अगस्त आता है, तो अगस्त में अब यही सारा कुछ, फैमिली में थोड़ा सा हार्श बोलते नजर आ रहे हैं, फड्डे हो सकते हैं फैमिली में। फैमिली में जैसे कहते हैं कि दोबारा आपका फोकस फैमिली के फड्डे, फैमिली के मैटर, जमीन जायदाद के मामले, एसिड बिल्डिंग, इसी पे ही रहने वाला है। और वैसे अगर चलो शुगलन कहूँ तो गोश्त ज्यादा खाते नजर आते हैं उन दिनों, रेड मीट ज्यादा खा रहे होंगे, लाल चने, रेड किडनी बीन्स बहुत ज्यादा खा रहे होंगे उन दिनों। अच्छा, इसी तरीके से ये भी एक पॉजिटिव फाइनेंशियल गेन का महीना है। रिलेशनशिप्स में, फैमिली में थोड़ा सा पटफड़ा हो सकता है, इनकी जुबान से इनके फैमिली मेंबर्स हर्ट हो सकते हैं, इस तरह की सूरत हाल रहेगी। फैमिली टेंशन का महीना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको रिलेशनशिप्स के इश्यूज का महीना अगर कोई है तो वो अगस्त 2026 है, जिसमें सारी अच्छाइयों के बावजूद अगर रिश्तों में ही तनाव आ जाए और बहसों मुबाहसे और चीज़ें, तो सारा ये पिछला मज़ा जो होता है, आपने इंजॉय जो करना होता है, वो आप इंजॉय नहीं कर पाते। और सिला रहमी के रिश्ते हैं, चीज़ें, उनमें मैं समझता हूँ कि कोशिश करें कि अगर ये सब सुख अल्लाह ताला, ये देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, कौन सा महीना दे रहा है, कौन सा वो कर रहा है, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो ये बांट के खुश रहने की चीज़ें होती हैं, मिल के एंजॉय। अकेले आप जंगल में बेशक सोने के महल में हो, क्या फ़ायदा उसका। उसके बाद जी सितंबर 2026, सन वर्गो में, मार्स टॉरस में, मरकरी ल्यू टू वर्गो मूव कर रहा होगा, इसी महीने करेगा, वीनस लिब्रा में होगा, अपने ही घर, जुपिटर कैंसर, कैंसर साइन में, पार्टनरशिप पे फोकस होगा, लीगल मैटर्स, कोई शादी का प्रपोजल, पार्टनरशिप प्रपोजल इनको आ सकता है। तो अगर कोई एरीज शादी के ख्वाहिश पर थे, रिश्ते के इंतजार में थे, तो ये महीना शादियों का, रिश्तों का महीना 2026 है। उसके बाद आ, कई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे थे, फाइनलाइज होंगे, कई नए मुआहदे कर सकते हैं, इसी तरीके से नए कस्में वादे खा सकते हैं लोगों से, दोस्तों से। तो ओवरऑल ये एक कम्युनिकेशन में, रिलेशंस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, बिजनेस पार्टनरशिप में या लाइफ पार्टनरशिप में, उसमें अच्छा महीना। और काम ज़्यादा रहेगा इस महीने, माइनर हेल्थ इशू, स्ट्रेस से रिलेटेड मामला हो सकते हैं। एक्सीलेंट महीना कहेंगे इसको अगर कोई लीगल मैटर्स दरपेश हैं या कोई पार्टनरशिप करना चाहते थे काफ़ी अच्छे से, तो अब यहाँ पार्टनरशिप ऑफर्स आएंगी। उसके बाद अक्टूबर 2026,
یہ وہ مہینہ ہے جناب جس میں سارے کے سارے خیر بروج کی بات ہوگی. راہو کیتو اپنی جگہ چینج کریں گے. راہو کیتو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی تنگ کرتے ہیں پلیسمنٹس تو ان کی ہوتی ہے. اب یہ کیونکہ راہو ایکویریس سے الٹا چال اپنی کیپریکارن میں لے آئے گا, کیتو کینسر سائن میں آ جائے گا. اب یہاں ان کے لیے پھر وہ ٹربل. اب یہ دیکھو کیسا جال بچھے. پیچھے ایک بندے کو ترقی ملی, پھر اس کے ایسٹس بنے, پھر وہ ایگوسٹک ہوا, پھر وہ بہن بھائیوں سے فیملی ڈسپیوٹ آئے. اچھا پھر وہ نئی اس میں آیا, پھر اس کو نئی پارٹنرشپ آفر آئی, پھر اب اس کا رویہ ہوا. تو اب اکتوبر میں جا کے کیتو اس کے دل میں آ گیا, اس کو گھر چھوڑ کے دور جانا پڑے گا. گھر گاڑی ہوم لینڈ سے دور, گھر گاڑی کھڑی رہے گی. اماں کی صحت کا خیال کرنا ہے, والدہ سے دور رہنا پڑے گا, والدہ دور چلی جائے گی اکتوبر میں. تو اکتوبر میں والدہ دور ہو جائے گی. یہ اس کے ہائی چانسز ہوں گی کہ یہ ایک گھر میں نہیں رہ پائیں گے. کوئی بہانے بنیں گے دوری کے, ان کو سفر کرنا پڑ جائے, والدہ کہیں چلی جائے, یہ ساری صورتحال رہے گی. اپنے ملک سے دور بھی جا سکتے ہیں اس ٹائم میں, اور اسی طرح اپنی گاڑی کھڑی ہوگی اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے. اور یہ چانس اگر یہ اکتوبر میں نہ بھی ہوا تو اگلے 18 ماہ اسی کے ہی ہیں. کیوں؟ یہ کیتو تو ہم نے اب اس نے چینج نہیں ہونا, یہ تو آ گیا اس مہینے, اور کیتو چوتھے میں آ گیا تو یعنی کہ سکھ, گھر کا سکھ, گاڑی کا سکھ, کمفرٹ, ماں سے دوری, ہوم لینڈ سے دوری کروا دیتا ہے, اور 18 ماہ کے لیے ہوگی. تو اس لیے ذہن بنا لیجئے گا پہلے. اب یہاں کریئر, آفس, پالیٹکس, لانگ ٹرم پلان سب اب دفتر پہ پھر ایک دفعہ چھائے ہوں گے. اگر ایریز اس ٹائم پہ یوٹیوب کا کام, سوشل میڈیا کا, فوراً یہی جتنا آن لائن کام, یا اپنے جو فوراً کوئی کام, وہ اس میں فائدہ ہو اور وہ بڑا ترقی کرے گا. لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ گھر سے دوری, گھر سے دوری. فورن میں دوری. سکسیس, گھر سے دوری. اب یہ ان ایکسپیکٹڈ کیریئر میں چینج آئیں گے, یہاں اپرچونٹیز نئی بنے گی, ٹریول جو ہے وہ پاسبل ہے, گھر سے دور جانا پڑ جائے گا. گھر میں ایک سکھ کا سانس نہیں آئے گا, اپنے گھر میں جگہیں بدلتی رہیں گی, یوں سمجھ لیں. اور اسی طریقے سے یہ مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال میں وہ مہینہ ہوگا جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر کا, گاڑی کا سکھ نہیں ملے گا. اس کے بعد نومبر 2026, نومبر میں جوپیٹر جو ہے وہ سمجھ لیں لیو کی طرف جا رہا ہوگا, ان کے 5th ہاؤس میں, دماغ کے, مستقبل کے. تو ریلیجیس ہوئے ہوں گے, مذہبی ہو رہے ہوں گے. اب دیکھو گھر سے دوری ہوئی, گھر سے نکلے, گھر گاڑی گئی, اب فوراً قدرت کا سسٹم ہے, بس اب مذہبی ہو رہے ہیں. اب لک, فورن ٹریول, ریلیجیس جرنیز, حج عمرہ کا جیسے کہتے ہیں زیارات, مذہبی ٹریولز, اپنے اپنے مذہب کے حساب سے ریلیجیس جرنیز ہوں گے. لک چلے گی یہاں, کیونکہ 5ویں سے بیٹھ کے ان کے 9ویں 1st ہاؤس کو دیکھے گا. اب یہ جگہ پھر تھوڑی سی ان کی بہتر ہونے والی ہے, ان ٹرمز آف جوپیٹر کا جو لیو میں آنا ہے وہ ان کو بڑا فائدہ دے گا. اچھا اب آ جائے گا مارس, ڈیبلیشن میں آ جائے گا, تو والدہ کا آپریٹ ہو سکتا ہے. اپنا ایکسیڈنٹ کا خیال کرنا, گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا بھی خیال کرنا. ایکسیڈنٹ کے حساب سے یہ کافی ٹربلس مہینہ. دانے وانے بھی نکل رہے ہوں گے ان دنوں نومبر 2026 میں, پمپلز نکل رہے ہوں گے, یہ وہ مہینہ ہوگا, خون گندا ہوا ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد یہ جہاں فوکس کہاں رہے گا, بچوں پہ, بچوں کی اس پہ کوئی رومانٹک افیئرز ہوں گے, کوئی اگر ٹریڈنگ یا مستقبل کی کوئی ایسا ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کریٹیو سکسیس مل جائے گی, اگر کوئی کریٹیو کام کر رہے ہوتے تو کریٹیو ہیں, انوویٹر ہیں, تو یوٹیوب میڈیا پہ اگر کوئی کام ہے تو چل جائے گا بہت زیادہ, اس پہ پہچان مل جائے. بہت اچھا in terms of lucky مہینہ اگر کوئی کہیں, in terms of luck وہ یہ ہے. لیکن پیچھے آپ نے جیسے جیسے کہا ہے کہ یہ یوں ہی ایک دن حق میں اور ایک دن مخالف, یہی اللہ کا نظام ہے. ایموشنلی سینسٹیوٹی کا مہینہ ہے, ڈومیسٹک ٹینشن, انرجی لو رہنے والی ہے,
बस ये है कि इन दिनों कोई रोमांटिक हुए होंगे, अगर बच्चों को प्लान कर रहे थे तो ये महीना बच्चे पैदा करने का हो सकता है, मर्द या औरत जो भी है। और ये समझ लें कि आपका कोई ना कोई बच्चे की प्लानिंग के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद जी ठीक है। एंड 2026 का दिसंबर, यहाँ मार्स अभी भी कैंसर में ही है, सन सजिटेरियस में है, मरकरी सजिटेरियस, वीनस स्कॉर्पियो में, अब जुपिटर जो है अब लीव में रेट्रो हो गया। अब यहाँ फिर इस दिसंबर में जैसे ही वो रेट्रो होगा तो इनके पिछले घर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगेगा, घर गाड़ी और वो सारे मामला की जो टेंशन है। और लेकिन अब ये है कि बड़े जुपिटर का जो पिछला घूम के पिछले घर को देखना, घर और उसके मामलात में गुरु मंगल की एक्सपेक्ट बन जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे घरेलू मामलात में अब इस वक्त ये। और इस टाइम पे फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्लान्स अगर कोई थे तो वो थोड़े से, जो पिछले दिनों इन्होंने जो सफ़र किए होंगे, जो इन्होंने ट्रैवल किया या मुस्तकबिल के सफ़र की प्लानिंग की, अब हो सकता है कि अब जब जुपिटर रेट्रो होगा इस महीने तो वो दोबारा करना पड़े, दोबारा वजीफा, दोबारा चीज़ें, जैसे इस दफ़ा हाँ जुमले पे मैंने आप लोगों को बताया ही था और फिर हुआ भी। तो ये वो टाइम होगा जब वही चीज़ें दोबारा करेंगे। तो ये दिसंबर की उसमें, और ये था ओवरऑल समझ लें कि जो फोरकास्ट फोरकास्ट फॉर एरीज। द एरीज के लिए 2026। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों के लिए इस साल में जो है वैसे ही एरीज को छोटे भाइयों का ख्याल करना चाहिए, इनका लॉर्ड मंगल उसको रूल कर रहा होता है। दूसरा, इनको जो इस साल जो वैसे भी मंगल वाले दिन काली, उसका काली नहीं, रेडिश जो होती है, रेड चीज, कुछ लोग इसको मार्स को ब्लैक से समझते, सैटर्न के लिए ब्लैक होता है, मार्स के लिए रेड चीजें, लाल दालें, लाल गोश्त, लाल एवरीथिंग, वो आप दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल जनाब 2026। ठीक है सर, तो ये दुआए का आपका अमल भी करें, और तस्वीर जो है पढ़ाई के लिए क्या करें? देखें, सबसे ज्यादा जरूरी हम सबको रिकमेंड करते हैं कि ये तो आपके घर का, जैसे कहते हैं ना कि इस चैनल के सब्सक्राइबर और होने का, हमसे जुड़े होने का एक इंस्टेंट फायदा है कि दुआ एक आपका अमल करके अपनी जिंदगियों से शैतान निकाल लें, अपने सेहत के मसाइल, अपने बाकी मैटर्स को बेहतर कर लें और इसको इसको जारी और सारी रखें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये था एरीज। कल हम बात करेंगे टॉरस की, और इसी तरह आपका ज़ोडिएक साइन भी इसमें आ जाएगा। उसामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी इसमें रीडिंग दे रहे हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।